Hello students, this is Kapil Gaur in front of you and I am here to teach you some concepts of biology of class 9th. Students, today I am here to teach you our new chapter, that is tissue. And in tissue, first I will discuss and I will start from division of labor. Before starting division of labor, I want to check your previous knowledge. In my previous lesson, I taught you cell and I explained that cell is the basic structural and functional unit of life. Students, I want to discuss with you that there are two types of animal on the basis of numbers of cells. One is unicellular animal and the second is multicellular animal. Unicellular animal means the organism having single cell only and perform all its life activities only by single cell, and multicellular means there are billions and millions of cells in living organism. Clear? Students, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है एक कोशिकीय जीव जिसमें एक सेल होती है, एक कोशिका होती है। वो अपनी लाइफ की सभी एक्टिविटीज उस सिंगल सेल के द्वारा ही परफॉर्म करता है। He perform all his life activities by only a single cell. Example: excretion, reproduction, digestion, all his activities complete by only a single cell. जैसे अमीबा, अगर उसको रिप्रोडक्शन करना है तो उसके पास रिप्रोडक्शन के लिए एक ही सेल है, वो उसी से रिप्रोडक्शन करेगा। उसको न्यूट्रिशन करना है, न्यूट्रिशन के लिए उसके पास एक सेल है। उसको एक्सक्रीशन करना है, वो भी उसी सेल से करेगा। अपनी जिंदगी की सभी आवश्यकताएं वो सिर्फ एक सेल के द्वारा पूरी करता है। वो हो गया यूनिसेलुलर एनिमल। सेकंड, दूसरी तरफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स। मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैव डिफरेंट सेल्स। मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स which perform different activities. That means organ is made up of cells. As we have studied that cell is the basic structural unit of life. What does it mean? It means all the body is made up of cell. That means all organ is made up of cell. तो मल्टीसेलुलर एनिमल्स में अलग अलग काम अलग अलग ऑर्गन के द्वारा किया जाता है, यानी और अलग अलग ऑर्गन बना हुआ है अलग अलग तरह की सेल्स से। समझ आ रही है बात? इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या हुआ? डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा। मल्टी सेलुलर एनिमल्स में काम बट जाता है। न्यूट्रिशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अलग अलग सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड विद different organs and different organs are perform their specific functions. अलग अलग organ अपना अलग अलग स्पेशल और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। This is called division of labor. I am writing the definition. In multicellular animal, in multicellular animals, there are so many cells. There are so many नहीं कहेंगे हम, billions of cells. Billions of cells perform specific functions. क्या हो रहा है? काम का बंटवारा हो रहा है, डिवीजन हो रहा है लेबर का। अलग अलग
सिस्टम को अलग अलग काम दे देगा, भाई सब अपना अपना काम करो। तो दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। इसी को हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। डिफरेंट मल्टीसेलुलर एनिमल्स में सेल्स जो है अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। अब सेल्स कह रहा हूं मैं, सेल नहीं कह रहा हूं, आई एम सेइंग सेल्स करती हैं। दैट मीन्स a group of cells performing special or specific function is called tissue. ये आ गया टिश्यू। दैट मीन्स इस चीज से एक बात तो क्लियर हुई कि टिश्यू इज प्रेजेंट ओनली इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स। टिश्यू केवल मल्टीसेलुलर एनिमल्स में पाया जाता है। दिस इज आवर न्यू चैप्टर, टिश्यू। यहीं से हमें पढ़ना है टिश्यू। The branch of science in which we study about tissue is called histology. Histology is the branch of science in which we study about tissue. Histology is the branch of science in which we study about tissue. सेल्स की स्टडी जो की जाती है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। टिश्यू की जो स्टडी की जाती है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। अंडरस्टैंड? This is tissue, the chapter we are going to start today. Let's start our chapter. Okay students, now tell me, we have two types of living organisms. mainly कह देते हैं कि हमारे पास दो तरह के हैं, animals and plants हैं। The question is, do animal and plants have same kind of tissue, same type of tissue? क्या एनिमल और प्लांट्स में टिश्यू जो हैं वो एक जैसे होते हैं? अब ये क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द आंसर? यस, द आंसर इज नो। यू सेड नो ना? यस, द आंसर इज नो। एनिमल्स एंड प्लांट्स डोंट हैव सेम टाइप ऑफ टिश्यू। दोनों के पास एक जैसा टिश्यू नहीं होता। बोथ हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। बहुत डिफरेंसेस होते हैं इसमें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट टिश्यू? स्टूडेंट्स, प्लांट्स हैव मोर डेड टिश्यू एज कंपेयर टू एनिमल। प्लांट्स के पास डेड टिश्यू ज्यादा होते हैं, एनिमल्स के पास लिविंग टिश्यू ज्यादा होते हैं। दैट मीन्स सेल्स विदाउट प्रोटोप्लाज्म, वे सेल्स जिनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। तो प्लांट्स के पास डेड टिश्यू ज्यादा है, एनिमल्स के पास लिविंग टिश्यू ज्यादा है। प्लांट्स आर स्टेबल, सबको पता है प्लांट सबकी जगह खड़ा हुआ है। एनिमल्स मूव करते हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इतने सारे काम करते हैं एनिमल्स। तो प्लांट्स के सेल्स को मेंटेनेंस के लिए लेस एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि उसको ज्यादा काम नहीं करना। एनिमल्स को मेंटेनेंस के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। एनिमल्स नीड मोर एनर्जी फॉर मेंटेनेंस, सेल की मेंटेनेंस के लिए। दो डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस है, एनिमल्स में टिश्यूज के बीच किसी तरह का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। प्लांट्स में डिफरेंशिएशन है। दो कैटेगरी बढ़ जाएंगे प्लांट्स में, एक कैटेगरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक कैटेगरी परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक क्या है, परमानेंट क्या है, आई विल डिस्कस इन माय अपकमिंग वीडियोस। प्लांट्स में हो गया डिफरेंशिएशन, भाई मेरिस्टेमेटिक अलग कैटेगरी है बिल्कुल और परमानेंट अलग कैटेगरी है। लेकिन एनिमल्स में देयर इज नो सच काइंड ऑफ डिफरेंस। एनिमल्स में इस तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता कि परमानेंट है कि मेरिस्टेमेटिक है, नहीं।
है तो है, सब जैसे एक जैसे हैं, तो अपने काम को लेके डिफरेंस है उनमें, सबका फंक्शन अलग अलग है, बट ऐसा डिफरेंस नहीं है कि ये मेरिस्टेमेटिक हो गया परमानेंट हो गया, नहीं नहीं, ये सिर्फ डिफरेंशिएशन जो है वो प्लांट्स में ही है। ओके, प्लांट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल है, ज्यादा ऑर्गन्स भी प्लांट के पास नहीं होते, कितने, रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर। अब एनिमल्स में तो इतने ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन अलग हैं, इंटरनल ऑर्गन्स अलग हैं, इतने सारे ऑर्गन्स हैं। तो एनिमल्स में ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू प्लांट। अब बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स हैव स्टेशनरी हैबिट एंड एनिमल्स आर मोबाइल, दे कैन मूव in search of food and water, so they have different tissues. Okay students, this is the difference between plant and animal tissue. मैं अभी 2 मिनट में आया, तब तक आपको जो मैंने डिफरेंसेस बताए हैं फटाफट 2 मिनट में वो डिफरेंस अपनी रफ नोटबुक में लिखिए एंड देन आई विल चेक। मैं अभी 2 मिनट में आया। ओके, आई एम बैक। लिख लिए सबने डिफरेंसेस? लिखे? गुड, वेरी गुड। चेक कर लिए? सही है? ओके, इफ यू हैव मेड एनी मिस्टेक देन रेक्टिफाई। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है प्लांट टिश्यू का। पहले हम प्लांट टिश्यू स्टडी करेंगे, उसके बाद हम एनिमल टिश्यू स्टडी करेंगे। अभी मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ प्लांट टिश्यू का, आप सब मेरे साथ साथ वो फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है, जिसके द्वारा हमें पता लगेगा, वी विल नो द टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। एक तरह का क्लासिफिकेशन है ये प्लांट टिश्यू का, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कह सकते हैं हम इस चीज़ को। तो हम लेके चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू एज आई हैव डिस्कस्ड नाउ, प्लांट टिश्यू इज कैटेगराइज्ड, इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। So let's start. Plant is categorized into 2 parts. Number 1 is meristematic tissue. Meristematic tissue. And the second category is permanent tissue. Permanent tissue. Second category is permanent tissue. Now meristematic tissue is lateral, divided into 3 parts. लेकिन पहले उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस है, क्यों डिवाइड किया गया इनको 2 पार्ट्स में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मींस टिश्यू हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। इनकी सेल्स के पास डिवीजन करने की कैपेबिलिटी होती है, और प्लांट्स जो है थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करता है और थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ करता है। ऐसे मैंने कहा था कि एनिमल्स में इस तरह का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि एनिमल्स की ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड है, प्लांट्स में 2 तरह की ग्रोथ हो गई। एक प्लांट हो गया क्या कि मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ है, प्लांट थ्रू आउट द सेल डिवाइड करेंगी और तमाम जिंदगी जब तक पेड़ रहेगा बढ़ता रहेगा, ग्रोथ करेगा। और परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है दे लूज द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। परमानेंट टिश्यू की सेल्स जो है वो डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज कर देती हैं, खो देती हैं, ठीक है। गुड। आगे चल के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम, lateral meristem, and intercalary meristem. Intercalary meristem आगे चल के ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। परमानेंट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। परमानेंट टिश्यू को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, and that is simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue, simple permanent tissue and complex permanent tissue.
complex permanent tissue, simple permanent tissue and complex permanent tissue. Okay. After that, simple permanent tissue is further divided into three parts. आगे चल के सिंपल परमानेंट को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. That is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Okay, and complex permanent tissue is further divided into two parts. इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, and that is xylem and phloem. That is xylem and phloem. So now we have to study about apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem, then parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, then xylem and then phloem. This is a classification of plant tissue, my dear students. अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे and we will start from meristematic tissue. Understand? We will start from meristematic tissue. In my next video, I will teach you and I will start the meristematic tissue. Till then, watch this video carefully and try to understand what I taught you today. Goodbye, take care, stay safe, stay healthy.